sits in PPC. So with discovery of the new stock, अगर स्टॉक नया मिलता है हमको कहीं पे से, राइट, और एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी या फिर टेक्नोलॉजी का भी एडवांस हो जाती है, द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमी इंक्रीजेस. तो क्या होगा, प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी इकोनॉमी की. सो ये इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज होने के पीछे रीजन क्या है, या तो टेक्नोलॉजी का बढ़ना या फिर नए स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज का मिलना. नाउ द इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ द गुड एक्स और मोर ऑफ द गुड वाई और बोथ ऑफ द मोर ऑफ द गुड्स, राइट. हो सकता है अगर नया स्टॉक मिले या फिर टेक्नोलॉजी बदले. तो हमने देखा था कि अजम्पशन में ये बताया जा रहा है कि स्टॉक कांस्टेंट है, स्टॉक इज नॉट गोइंग टू चेंज, टेक्नोलॉजी, द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी आल्सो गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट, नॉट गोइंग टू चेंज, राइट. पर अगर हम ये अजम्पशंस को ब्रिज कर दे, राइट, इफ वी हैव अ डिस्कवरी ऑफ अ न्यू स्टॉक और इफ वी हैव एडवांसमेंट ऑफ अ टेक्नोलॉजी, राइट, देन डेफिनेटली ये पीपीसी कर्व जैसा है वो अपनी जगह को चेंज कर देगा. इट मे शिफ्ट फ्रॉम दैट प्लेस. The effect of the economic growth on the production possibility curve to a country is illustrated as follows. So, if you say that when the PPC will curve, curve shift to the right, when a new stock is resources are discovered, and maybe there's an advancement of the technology. So, stock and technology, if behave favorably, what I mean to say, अगर वो दोनों favorably behave करेंगे, तो PPC curve will shift to the right. For example, government policy of Make in India. So let's say earlier PPC curve is like this, right? In a simple, but because of the new stock, it may happen that आप good X और good Y दोनों ही ज़्यादा बना सकते हो. Or because of the new level of technology, you can now produce X and Y both in a good quantities. So what will happen? A new curve will be there, right? And will shift to right. Now when will the PPC curve shift to the left? जब रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय हो जाए. अगेन यहाँ पे पीपीसी के जो अजम्पशन है ब्रीच हो रहे हैं. अगर रिसोर्स आप डिस्ट्रॉय कर दो, खत्म कर दो, राइट, बिकॉज ऑफ लेट्स से नेशनल कैलामिटी आ जाए, अर्थक्वेक, फायर, वॉर, तो डेफिनेटली जो पॉसिबिलिटी है इकोनॉमी में गुड्स बनाने की वो कम हो जाएगी, राइट. जैसे कि मैगी की प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रॉय हो गई, मैगी की फैक्ट्री में आग लग गई मे बी, सो सब मैगी खत्म हो गई. So what will happen? The possibility of production will be decreased. या फिर there is an outdated use of technology. अगर आप पुरानी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो तो भी प्रोडक्शन की कैपेसिटी कम ही रहेगी. तो उसमें क्या होगा? For example, at some point of time you have a PPC curve like this, तो it will shift to the left. Left means अंदर की बाजू चला जाएगा वो. समझ में आ रहा है? Shifts. Yes. Everyone is getting this? Yes, sir. Yes, sir. Okay, let's move towards a new concept. That is what I call as opportunity cost. Now, opportunity cost as a concept arises with a choice. In life, we made many choices. And because of the choice only, choice की वजह से ही opportunity cost का जन्म होता है. For example, we know that so far that all economic problems is a problem of choice. And we know that because of scarcity, children and adults cannot have all the things they want. Scarcity की वजह से हमको वो हर एक चीज नहीं मिलती जो हमको चाहिए. So what we have to do? We have to make a choices every time, right? So when we choose something, when we choose between two things, the things we give up, जो चीज हम दान में दे देते, बलिदान दे देते या सेक्रीफाइस कर लेते, the things we don't choose, जो चीज हम चूज नहीं करते, this is our opportunity cost, right? So in here, if the father say to a child that I'll bought you a skateboard, right, or I'll take you to the zoo, right, या फिर I'll take you to the park. Now the father has $20 in their hands. Now the child has to choose whether she wants a skateboard or she wants to go to the zoo. Whatever child choose, child कुछ भी choose करे, skateboard choose करे या फिर
पार्क में जाना चूज करे, एक चीज तो उसको फॉरगो करनी पड़ेगी, एक चीज तो उसका सेक्रीफाइस देना पड़ेगा. द थिंग्स दैट अ चाइल्ड सेक्रीफाइस इन लीव ऑफ द अदर, इंस्टेड ऑफ द अदर, इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट. तो लेट्स से चाइल्ड ने अगर चूज किया स्केटबोर्ड लेना, तो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा? उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा कि वो पार्क में जाना फॉरगॉन कर दिया, भूल गई. अगर वो बोले कि मुझे पार्क में जाना है, तो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा? उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा कि वो स्केटबोर्ड उसने नहीं लिया. इन अदर वर्ड्स, अगर हम इसको ध्यान से देखने जाए, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज बीन मेजर्ड नॉट इन द अमाउंट, बट इट इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ अनदर थिंग्स दैट यू गिव अप. ये कुछ पैसे से तोला नहीं जाता, ये उससे तोला जाता है जो चीज आप गिव अप कर लेते हो, जो चीज आप नहीं लेते हो, जो चीज का आप बलिदान देते हो. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देयर आर मेनी एग्जांपल्स एज सच. फॉर एग्जांपल, यू स्टडी लेट नाइट फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन. The next day you feel very sleepy. What is the opportunity cost? The opportunity cost is a good night's sleep. आपके अच्छे मार्क्स आने का opportunity cost क्या होगी? कि आपको अच्छी नींद नहीं मिली, right? So maybe you take apple or pear, a choice A or choice B. All the way you have an opportunity cost. हर जगह पे आपकी opportunity cost होती है. याद रखिए, बिजनेस में सबसे बड़ा खर्चा अगर है तो opportunity cost का है. For example, if you open a restaurant or resort at one area, but you haven't opened that resort in many other areas because क्योंकि आपने एक ही एरिया चूज किया, तो opportunity cost क्या होगी? Definitely in those areas you couldn't able to open the shop or a restaurant or a resort. तो बिजनेस में भी हम काफी सारी चीज ऐसी होती है जो हम नहीं करते हैं, और जो नहीं करते वही हमारा कॉस्ट होता है, राइट. दिस इज कॉल्ड इम्प्लाइड कॉस्ट. ये कॉस्ट देखा नहीं जाता पर होता जरूर है. लेट्स अंडरस्टैंड दिस meaning and definition. So the basic and simplest definition of opportunity cost is what? The next best alternative sacrificed or forgone. आपने next best alternative अगर sacrifice कर दी है या फिर भूल गए, forgone कर दी है, that is your opportunity cost. Sacrifice of alternative कब होता है? Is involved when number one, when resources are scarce. जब आपके पास resources है पर बहुत कम मात्रा में है, scarce है. And second, resources have alternative uses. Resources के alternative use है. ये दो चीज होगा तो ही आपके पास opportunity cost होगी. अगर ये दो चीज नहीं है तो opportunity cost भी नहीं है. See, resources scarce होने का मतलब कम है, तभी तो opportunity cost है, तभी तो आप दूसरी चीज चूज करते हो, राइट. फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर्स कितने होते हैं शहर में? 20, 30, 40, 500. How much? It is still countable. So either you go to Dr. A or Dr. B. So if you choose to go to Dr. A, the other doctor you are going to sacrifice. And definitely all these resources have alternative uses. So whatever the resource you are going to choose, ये सबके alternative uses तो होंगे ही होंगे, right? उसका एक use नहीं है, बहुत सारे uses हैं, right? And they are all alternative. Let me give you with a help of an example. Let's say in a business you have a broken machine, right? एक दिन क्या हुआ कि आपकी मशीन ब्रोक हो गई. Now, if you fix the broken machine, you have two options with you, or you cannot fix the broken machine. So let's understand this case study. Imagine you have two sets of machinery in a production facility. One machine broke down. और जो broke हो गई ना मशीनरी, this cost you $100 per hour in wages and electricity in to run. कहने का मतलब मशीन भले टूट गई, मशीन का कोई खर्चा नहीं टूटने का, बट इससे होगा क्या? आपको लेबर को वेजेस देना ही पड़ेगा, और जो इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है वो तो इलेक्ट्रिसिटी चलेगा ही, तो उसमें भी आपका पैसा जाएगा. तो ये पैसा कितना है? $1, $100 का है, राइट. तो कहने का मतलब मशीन ब्रेक होने के बाद आपको $100 का पर आवर खर्चा लगेगा, राइट. ऐसे कैसे पता चलेगा $100 का खर्चा लगा? क्योंकि वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन कितना है? द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन इन अ सिंगल आवर इज $500. $500 तो प्रोडक्शन है,
तो चलने वाली मशीन का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना होगा? $400 होगा। क्यों? क्योंकि आपने $100 अगर खर्च करके मशीन ठीक करवा दी होती तो क्या होता? आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम लगता है ना। पर नाउ बिकॉज यू नॉट फिक्स द ब्रोकन मशीन, आपको $400 का खर्चा लगेगा, $100 का नहीं, $400 का। अगर आपकी फैक्ट्री चल रही है, मशीन चल रहा है, तो $100 आप लेबर को दे दो, इलेक्ट्रिसिटी को दे दो, $100 तो देना ही पड़ेगा, राइट? तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत कम है। क्यों? क्योंकि आपको प्रोडक्शन बनाना है, प्रोडक्ट बनाने हैं, इसीलिए। बट अगर आप मशीन फिक्स करवाओगे नहीं तो क्या होगा? तो चलो आप लेबर को छुट्टी के दे दो, इलेक्ट्रिसिटी आप चार्ज मत करवाओ, फिर भी आपको $400 का तो नुकसान होगा ना प्रोडक्शन के ऊपर, जो आप कमा सकते थे जब आपने नहीं कमाए। सो एक्चुअली ऑलवेज याद रखिए, कोई भी बिजनेस में डिसीजन लिए जाते हैं वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के हिसाब से लिए जाते हैं। आपके पास मशीन ठीक करवाने से फायदा हो रहा है, या कॉस्ट बढ़ रही है, या मशीन ना ठीक करवाने से कॉस्ट बढ़ रही है। इफ यू फिक्स द ब्रोकन मशीन, अगर आपने फिक्स करवा ली होती ब्रोकन मशीन को, तो $100 में काम खत्म हो जाता। क्यों? क्योंकि $100 आप लेबर को दे रहे हो तो वो तो अच्छी बात है, क्योंकि उससे आपका जो प्रोडक्शन मिलेगा वो प्रोडक्शन से आप कमा भी पाओगे वापस। पर अगर आप मशीन फिक्स नहीं करवाओगे तो आपको हर घंटे $400 का नुकसान हो जाएगा, राइट? सो आप कौन सा डिसीजन लोगे जिसमें कॉस्ट कम होगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसमें कम है? फिक्स करवाने में। तो फिक्स हम करवा देंगे मशीन को। समझ में आ रहा है ये? यस। Yes, sir. इन इकोनॉमिक एनालिसिस याद रखिए, द कांसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज वाइडली यूज्ड। Now, opportunity cost, as I told you, that is defined as the cost of alternative opportunity given up. आपने जब alternative opportunity को given up कर दिया या sacrifice कर दिया, surrender कर दिया, that is your opportunity cost. For example, on a piece of land, both wheat and sugarcane can be grown. आप उगा सकते हो। So, अगर आप wheat grow करोगे वो जमीन पे, तो आपको sugarcane को give up करना पड़ेगा, और sugarcane उगाओगे तो wheat को give up करना पड़ेगा। In other words, one thing you need to give up, and the thing that you give up, जो चीज आप गिव अप कर रहे हो ना, वही आपकी तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। समझ में आ रहा है? वही आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। So it is clear that the question of opportunity cost arises, याद रखिए, जब alternative resources हो या फिर resources scarce हो, right? So whenever the resources have alternative uses, at that point of time only opportunity costs arise. The resources are not always physical resources. ये resource monetary resources या time भी हो सकता है, right? यहाँ पे तो हमने physical resources की बात की है, no doubt. For example, the opportunity cost of spending in a restaurant may be a book that you could have purchased by spending the same amount. या फिर opportunity cost of time devoted to studies, effort or work is a leisure time. ये जो फाजुल टाइम जो आपका, जो आपने जाने दिया, टीवी देख सकते हो, 2 एपिसोड देख सकते थे कोई टीवी का। In terms of production possibility curve, याद रखिए, the slope of the curve at every point measures the opportunity cost, right? So at every point, at point A, at point B, कोई भी point आप ले लो, ये आपको opportunity cost दिखाएगा. The concept of opportunity cost can also be shown with the help of alternative options given by the PPC, right? यानी opportunity cost आपको A अगर आप choose कर रहे हो और A के बदले अगर आप B choose करोगे, तो जो sacrifice करना पड़ा, right, कुछ gain करने के लिए, that is opportunity cost. So in figure, if you see movement along the production possibility frontier, that is PP1, shows a decrease in the output of food and increase in the output of clothing. अगर आप A ऑप्शन से B ऑप्शन की तरफ जा रहे हो तो फूड कम कंज्यूम कर रहे हो और क्लोथिंग ज्यादा कर रहे हो. So for example, movement from point A to point B, what it shows? Decrease in the food production and increase in the production of clothing. Production का फूड का डिक्रीज हो रहा है, F1 से F2 की तरफ जा रहा है, जबकि क्लोथिंग बढ़ रहा है, C1 से C2 की तरफ जा रहा है. सो इट इम्प्लाइज, ये क्या दिखा रहा है आपको?
द चेंज इन सी, दैट इज डेल्टा सी, जिसको हम चेंज इन सी बोलते हैं, amount of clothing can be produced only by sacrificing of food items, right? तो जब तक आपने फूड आइटम को सेक्रीफाइस नहीं करते थे तब तक आप क्लोथिंग को ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे. Let's understand with the help of practical problem. Illustration 1. Suppose you choose science stream, you had two other options. या तो आप आर्ट स्ट्रीम में जा सकते थे या तो कॉमर्स स्ट्रीम में. इफ यू वुड हैव चूजन आर्ट्स, राइट, आपको 3 लाख कमाने को मिलता. अगर आपने कॉमर्स चूज किया होता आपको 4 लाख कमाने को मिलता. व्हाट इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चूजिंग अ साइंस स्ट्रीम? अगर साइंस स्ट्रीम का चूज करने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, तो आपको ये देखना है कि नेक्स्ट बेस्ट कौन सा है. यहाँ पे 3 लाख नेक्स्ट बेस्ट है या 4 लाख नेक्स्ट बेस्ट है? यस. व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट, अनिकेत? Yes, Krishna. Sir, 4 lakhs. So definitely the opportunity cost of choosing a science stream is what? 4 lakhs rupees that you have forgone, right? So what is the opportunity cost? They say that the next best is commerce, and that is why it is 4 lakhs, the next best alternative. Let's understand about, with the help of opportunity cost, let's understand about the margin opportunity cost now, right? A new concept. Now anything in a economics is a marginal. अगर कोई भी चीज इकोनॉमिक्स में हम जब marginal बोलते हैं, that means what? It means that we are looking very minutely. Marginally अगर हम जब देखते हैं तो हम बोलते हैं बहुत minutely देखते हैं, छोटा और छोटा. हम बोलते हैं small farmers and marginal farmers. Small यानी छोटे बहुत, और मार्जिन यानी बहुत छोटे मोटे, एकदम माइन्यूट, जिनके पास कुछ कमाने को नहीं है. सो जब मार्जिनों की बात आती है तो बहुत माइन्यूटेस्ट ऑब्जेक्ट की बात होती है इकोनॉमिक्स में. द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन कर्व बिकॉज लुकिंग एट इट, इट अपीयर्स, आपको लगेगा अगर आप पीपीसी कर्व को देखोगे, दैट इफ वन गुड इज बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर, एक गुड दूसरे गुड में तब्दील हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है. So movement along the PPC implies that more of good X is produced by sacrificing the production of a certain amount of good Y. Good X आप ज्यादा प्रोड्यूस कर सकोगे अगर good Y का कुछ अमाउंट आप सेक्रीफाइस करोगे तो. The PPC also called opportunity cost curve because slope of curve at each and every point measures opportunity cost of one commodity in terms of alternate. तो PPC कर्व को हम दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व. क्यों? क्योंकि एक चीज को लेने के लिए आपको कहीं ना कहीं दूसरा बलिदान देना पड़ रहा है, सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, राइट? द रेट ऑफ दिस सेक्रीफाइस, याद रखिए, यही जिस रेट से आप सेक्रीफाइस कर रहे हो ना, वही मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. सो एमओसी की डेफिनेशन क्या? द वेरी फर्स्ट थिंग, द रेट ऑफ द सेक्रीफाइस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. समझ में आ रहा है? सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो है ही हर एक पीपीसी के हर एक पॉइंट पे, बट जिस रेट से उसको बलिदान देना पड़ रहा है ना, वही आपका मार्जिनल है, बिकॉज इट शोज वेरी माइन्यूटली कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए कितना आपको बलिदान देना पड़ेगा. सो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एमआरटी और एमओसी सेम ही चीज है. उसका भी डेफिनेशन हमने कल पढ़ा था. इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स of good sacrifice to produce one additional unit of another good. कितना नंबर ऑफ यूनिट आप बलिदान दोगे एक ज्यादा आपको दूसरा गुड लेने के लिए, कोई भी दूसरा गुड हो, राइट? इन अदर वर्ड्स, एमआरटी इज मेजरिंग व्हाट? एक गुड का बलिदान दो तो दूसरा गुड आप मिलेगा. इन अदर वर्ड्स, एमआरटी इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ पीपीसी कर्व. एक्चुअली एमआरटी है क्या? वो है रेट विच ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपनिंग, राइट? और एमओसी क्या है? एमओसी भी वही है, द रेट एट विच द ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपनिंग. तो एक्चुअली एमआरटी और एमओसी तो सेम चीज ही हुई, राइट? सो एमआरटी इज व्हाट इज द रेट एट विच द ट्रांसफर ऑफ द रिसोर्स फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ वन गुड टू द प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड टेक्स प्लेस. जिस रेट से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि पीपीसी कर्व
पूरा डिपेंड किस पे करता है, एमआरटी पे, या फिर हम ऐसा ही बोल सकते हैं एमओसी पे. सो व्हेन आई एम सेइंग दिस आई एम नॉट रॉन्ग. लेट अस सी विद द हेल्प ऑफ some numerical examples. Right now, this table shows how margin opportunity cost is calculated, and this is a very hypothetical example. आपको दिया है good x, आपको दिया है good y, right? So what will be the margin rate of transformation of good x and y? So you see carefully कि कौन सा गेन कर रहे हो आप x को गेन करते जा रहे हो एक एक करके, और ये गेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, आपको y का बलिदान देना पड़ रहा है. Just look at it. So जिस स्पीड से आप y का बलिदान दे रहे हो हर एक x को गेन करने के लिए, हर एक x को गेन करने के लिए, this is your marginal opportunity cost और margin rate of transformation. दोनों की फॉर्मूला सेम ही है, वे ऑफ एक्सप्रेशन डिफरेंट है. एमआरटी को कैसे दिखाया जाता है, 1y is to 1x, 2y is to 1x, 3y is to 1x. तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो y कितना बलिदान दे रहे हैं यहाँ पे 1, यहाँ पे x कितना बना रहे 1, x वापस कितना बना रहे 1, तो इस समय y का बलिदान कितना दे रहे 2, वापस एक x को बनाने के लिए y का कितना बलिदान दे रहे 3, राइट. एंड दिस इज हाउ this MRT comes. 1 is to 1y is to 1x, 2y is to 1x, 3y is to 1x, so on and so forth. But MOC को एक्स नहीं दिखाते. MOC इतना ही दिखाता है कि हर एक x के लिए कितना y को बलिदान देना पड़ रहा है. तो पहले एक, बाद में दो, बाद में तीन, वैसे. The table shows that if the production of good x increases from 1 into 2 unit, then the 2 unit of good y, that is 19 minus 17, have to be forgone, right? तो आपको कुछ टाइम के बाद में भी ऐसा हो सकता है कि आपको ज्यादा गुड्स ऑफ y फॉरगॉन करना पड़े फॉर एवरी गुड ऑफ x. वैसे ही आपको समझाया गया कि मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी क्या बोलेंगे उस टाइम पे, हम बोलेंगे कि मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है 2. In the same way, margin opportunity cost of the other situation can be worked out, right? So यहाँ सबको क्लियर हो रहा है कि जैसे ये 1 से 2 पे जंप कर रही है, वैसे 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5 पे भी जंप होगा, right? This is nothing but, as I told you yesterday, it's a law of increasing marginal opportunity cost. ये क्या है? Law of increasing marginal opportunity cost. और क्योंकि ये marginal opportunity cost increase हो रहा है, वापस I'm repeating, क्योंकि ये marginal cost opportunity cost increase हो रहा है, MOC concave to the origin है. उसका इकोनॉमिक मीनिंग क्या? उसका इकोनॉमिक मीनिंग इज दैट टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ x, अगर आपको 1 यूनिट x बनाना है, आपको ज्यादा से ज्यादा y को सेक्रीफाइस करते रहना पड़ेगा. इंक्रीजिंग यूनिट्स ऑफ y गुड नीड टू बी सेक्रीफाइस फॉर एवरी x. तो पहले आप जो सेक्रीफाइस कर रहे हो उससे मे बी नेक्स्ट टाइम कुछ उनसे कुछ गुना ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़े. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Let's look at the problem, factory problem. So an economy produces 2 goods, t-shirts and cell phones, right? The following table summarizes production possibilities. Calculate MOC. कैसे कैलकुलेट करोगे? पहले आप ये देखोगे कितना आपको टी शर्ट्स बनाने हैं, राइट? कौन सी चीज बनानी ज्यादा है, तो टी शर्ट ज्यादा बनानी है. क्यों? क्योंकि वो अगर आप देखोगे तो बढ़ता जा रहा है. तो पहले 0 मिलियन से 1 मिलियन जाना है, अपने 1 मिलियन से 2 मिलियन, 2 मिलियन से 3 मिलियन, यानी आपको हर राउंड एक एक मिलियन बढ़ाते जाना है. तो उसके सामने आप क्या बलिदान दोगे? मोबाइल फोन्स का, सेल फोन्स का बलिदान दे रहे हो, राइट? तो पहले कितना बलिदान दिया? 10,000 का. बाद में कितना बलिदान दिया? 12,000 का. बाद में कितना बलिदान दिया? 16,000 का. So every time you make 1 million cell phone more, you make 1 million t-shirts more, you need to sacrifice more and more of cell phones. तो इसको कैसे समझा सकते हैं? We can show like this, right? So for every million of t-shirts we are producing, we are sacrificing some amount of clothes, cell phones, some amount of cell phones.
The next 1 million cell phone, t-shirt बनाने के लिए 12,000 cell phones. Next million t-shirt बनाने के लिए 16,000, बाद में 18,000, बाद में 24,000. यानी हर वक्त एक एक मिलियन टी शर्ट्स हम बना रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा सेल फोन को सेक्रीफाइस कर रहे हैं. इट मीन्स MRT is increasing. It means PPC is concave to the origin. समझ में आ रहा है ये सबको? Yes, sir. Fine. That's it for today. I'm not going to go further. Tomorrow I'll conclude this chapter, entire chapter, right? So tomorrow there will be a class in the morning. I'll just post, after discussing with other faculties, I'll post the timings of the class. कल आपका स्कूल नहीं, right?